Hi, good afternoon, everybody. This is Bishwajit Datta, and you are watching ASCAT. I was looking to this report uh, and I was figuring out what must be the reason for the students not getting placed in IIM Trichy. This is a uh, India Today report basically, which says that 59 IIM Trichy students unplaced. Educator flags it as worrying trend. Now, there are so many people, so many students who may be concerned with this, maybe worrying a lot as to whether I should go for an MBA, whether I should go for an IP MAT, whether I should do management put together. Now, this is something which is not very common. We do not see that happening in any of the IIMs, right? हम नहीं देखते हैं क्योंकि ऐसा नहीं होता है. अब इसके पीछे के थोड़े से रीजंस यदि जानोगे तो जो जो बातें चल रही है वो एक एक्सपर्ट क्या कह रहा है वो जरा से देखते हैं. एन एजुकेशन एक्सपर्ट हैज कॉल्ड द ट्रेंड नॉट नॉर्मल, sparking fresh debate on the changing job market for MBA graduates. In short, कोई कह रहा है too many new IIMs dilute the brand value, affecting placements. Somebody is saying IIM Trichy at 15% students unplaced, unusual for IIMs. Employers demand high skills, making jobs scarce for MBAs. But too many IIMs opening to changes in what companies want. Many people online are discussing why even top MBA students are not finding it hard to get jobs in today's tough job market. A growing conversation on social media has sparked debate around the changing value of an MBA, especially from India's premier B schools. The trigger, a string of posts reflecting how the once coveted management degree is no longer a guaranteed ticket to a dream job. One user remarked candidly, too many IIMs have diluted their brand. Most of these colleges don't entertain cause with salary below a threshold to retain a brand value, and that causes students go unplaced. They will get a job offline but at a lower salary in most cases. Yeah, ऐसा होता है that there are so many people who don't feel like taking a job below a particular standard, so they leave it and they apply for job somewhere else in the offline format. Now, what I could see, job market is changing. There is no doubt about it. There is no debate about it. As you could see, a lot of things are happening. यदि हम हिस्ट्री पे जाएंगे यू विल गेट टू सी दैट इन द 18th 17th एंड 18th सेंचुरी जब प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ था तब क्या हुआ था, हाउ द मार्केट वाज चेंजिंग, हाउ द मार्केट चेंज्ड. जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया कैसे चेंज हो गया, एक कैपिटलिस्टिक थॉट पर हम कैसे मूव कर पाए. समबडी हु अंडरस्टूड द चेंज ऑफ द सोसाइटी, द चेंज ऑफ द इंडस्ट्री, चेंज ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम, they all become the capitalists. सबके पास काफी पैसा बना. Now today at this point of time you will see that there are a lot of changing happening, particularly in the world of technology. तो हम जो भी पढ़ रहे हैं, whatever that we are studying, whether we are studying humanities or we are studying commerce or mathematics or biology, whatever that we are studying, we have to have certain technological hand in our education. Even if you are studying humanities, you must have certain sort of AI tools in the form of subject that you can study. क्योंकि देखो एक मिसमैच मुझे दिख रहा है. व्हाट इज द मिसमैच? आज बड़े बड़े जो MBA कॉलेजेस में जो पढ़ा रहे हैं, द प्रोफेसर्स द प्रोफेसर्स हु आर टीचिंग, उन लोगों की एजुकेशन पुराने ट्रेंड की है. तो वो AI ट्रेंड वाले एजुकेशन तो नहीं है. सो यू कैन नॉट से दैट दे आर मोर AI ट्रेंड एजुकेटर्स. They have done their PhDs or they have done their masters working with those kind of things which are very technologically advanced, pedagogy that they have studied. नहीं, ऐसे कोई भी प्रोफेसर्स नहीं है. So therefore जो क्लास में जो इनपुट जाएगा that would not be with that pace. Today's world demands a lot of pace in the education, and pace comes with technology. So anybody who would be contributing that into a management program or a college would be doing better for the students and also for the college itself. तो वैसे वाले जो प्रोफेसर्स हैं या जो PhDs हैं जो इस तरह की यूनिवर्सिटीज में जाके जगह में बनाने वाले हैं, वो अभी एंटर नहीं हुए ना. यदि आज मैं पूछूं कि यार ऐसे कितने यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें जो PhD होल्डर्स हैं दे आर वेल रेड विथ AI टूल्स और दे आर वेल रेड विथ AI मॉडल्स, दे आर वेल रेड विथ मशीन लर्निंग्स, ऐसे कितने प्रोफेसर्स होंगे? मेरे ख्याल से आप हाथों में गिनती कर सकते हो.
आने वाले टाइम में मशीन लर्निंग इज गोइंग टू बी कंपल्सरी इन अवर लाइफ। हर चीज में मशीन लर्निंग हो जाएगी। तो एनीबडी हु इज नॉट डूइंग मशीन लर्निंग वुड नॉट बी समबडी हुम आई वुड से दैट वुड बी डूइंग ग्रेट इन लाइफ। बिकॉज ये चेंज आपको दिख रहा है 21st सेंचुरी में, दैट AI machine learning has gone to a level. We have a lot of new things coming up into our syllabus. Anybody who would become a part of that syllabus very quickly would take the lead in the upcoming time. जो वही ट्रेडिशनल कन्वेंशनल MBA फॉर्मेट में रहेगा वो फंस जाएगा। तो भले आप किसी भी कॉलेज से किसी भी प्रकार की ग्रेजुएशन क्यों ना कर रहे हो, यू हैव टू इनकॉर्पोरेट सर्टेन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन योर कोर्सेज। भले आप 1 साल के डिप्लोमा वाले कोर्सेज क्यों ना उसमें इनकॉर्पोरेट कर लो, बट आपको करना पड़ेगा, बिकॉज दैट वुड गिव यू एन एडेड एडवांटेज विद द सिलेबस दैट यू आर स्टडिंग टुडे। व्हाई somebody don't want to recruit students from the best of the universities? Why such 52 students, around 15% of the students are yet not placed? मतलब बच्चों में कमी है। आप ये नहीं बोल सकते हो that somebody don't want to recruit students from the MBA colleges. ठीक है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं हमारे पास, काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं, इतने भी नहीं है कि पूरी दुनिया को जितनी ज़रूरत है उससे काफ़ी कम है। यदि आप कंपनीज देखो इंडिया में, देर आर thousands of companies working in the country. So the placement should not be an issue. I don't believe this. I believe that there is a problem in the quality of the students. So the quality has to come out. If there is a problem in the quality, recruitment process is going to be delayed. किसी को भी लेने में आपको 25 लाख 30 लाख देना है, मुझे किस बलबूते पे दूंगा? आप सोचो ना यार। तो क्या स्टूडेंट में वो क्वालिटी है, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो इसमें एक क्वेश्चन ये भी जाता है, क्या कॉलेज सही मायने में स्टूडेंट को सेलेक्ट कर रहा है? देखो, कॉलेज भी बहुत मनमानी से स्टूडेंट सेलेक्ट करता है। आई हैव बीन टेलिंग दिस फॉर ए नंबर ऑफ टाइम्स एंड मैंने उसमें कई सारे वीडियोज भी बनाए कि प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन इन द IIMs आर कॉम्प्रोमाइज्ड वेरी बैडली। भाई ये तो इंडिकेटर है ना, इफ आई एम 99 परसेंटाइल, दिस इज एन इंडिकेटर दैट आई एम ए गुड स्टूडेंट। आई लर्न वेरी फास्ट, मैं चीज़ों को सही से कर लेता हूँ, मैं बहुत जल्दी सीख भी लेता हूँ। आप ऐसे बंदे को ना लेकर के 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, डाइवर्सिटी और न जाने कितने फालतू के पैरामीटर्स जोड़ करके आप कई बार ऐसे बच्चों को ले लेते हो जिनका वर्थ नहीं है कॉलेज में जाने का। तो उससे प्रॉब्लम्स ये आती हैं। भले मेरे परसेंटेज नहीं है, आई डोंट हैव 60, आई डोंट हैव 90% ऑफ मार्क्स इन 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड, मे बी आई कुड डू वेल यार, उस टाइम पर मैंने नहीं किया। वी हैड ए स्टूडेंट आदित्य वर्धन शर्मा, 99 परसेंटाइल, कुड नॉट गेट इन टू IIMs, joined ISB Mohali, Hyderabad Mohali. He is doing great. He is expecting maybe 30 plus placement, I could get it. He is very sharp in learning. अरे हो सकता है मैंने अपने 10वीं में, अपने 12वीं में मैंने पढ़ाई पर उतना ध्यान नहीं दिया, या हो सकता है कि मेरे फैमिली सर्कमस्टेंसेस उस समय ऐसे बने दैट आई कुड नॉट स्टडी। बट नाउ व्हेन आई अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस परसेंटाइल विच आई एम राइटिंग वेरी प्रोफेशनली, आई एम गेटिंग 99 पॉइंट समथिंग एंड यू आर नॉट एक्नॉलेजिंग मी यार। आप मेरे को छोड़ करके उन लोगों को ले लेते हो जिनके 12वीं में कुछ परसेंटेज अच्छे, 10वीं में परसेंटेज अच्छे, या कुछ और पैरामीटर्स के आधार पर आप उनको ले लेते हो। उनके कैट में परसेंटाइल, IP मैट में परसेंटाइल इतना कमजोर है, आप ले लेते हो। आई हैव ए स्टूडेंट यार, मैंने उस दिन देखा एक स्टूडेंट का IP मैट में वाज 48 and plus in maths in the objective questions and then 30 and plus in the short answer type question, and he was around 112 or maybe 111 in verbal ability, 1 mark less than that of the verbal ability section. He was not called for the interview in IP MET Indore, and the cutoff is 12 marks in short answer questions in maths, 8 marks in ऑब्जेक्टिव लेवल मैथ्स। तो ऐसे बच्चों को आप यदि ले लोगे और जो सच में दिख रहा है आपको, एक्सूबरेंट हो रहा है, दिख रहा है आपको उसके स्कोर कार्ड में कि यार ये बहुत ही जबरदस्त बच्चा है, उसको आप नहीं ले पा रहे हो। तो देर इज अ लूप होल इन द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द स्टूडेंट इन द वेरियस IIMs, और इफ दिस हैपन कंटिन्यूसली, आई वुड से दैट इन द टाइम टू कम वी हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द प्लेसमेंट। यार वहां बैठे बैठे कोई फालतू के आपको पैसे देने के लिए नहीं बैठा हुआ है। डोंट इवन थिंक दैट यू आर getting into IIM so you will be getting a placement of 20 lakhs 30 lakhs. This does not happen. ऐसा नहीं होने वाला भाई। कोई आपको
ठोक करके बजा करके लेगा। आप मार्केट में जाके सामान खरीदते हो, ठोक बजा के लेते हो ना, तो यू आर फॉर सेल माय डियर। तो इफ यू आर नॉट गुड यू विल नॉट बी टेकन, एज सिंपल एज दैट। तो IIM ट्रिची हो या कोई दूसरा IIM हो, इफ द स्टूडेंट्स आर नॉट प्लेस्ड, मैं तो गलती कॉलेज का ही मानूंगा, बिकॉज कॉलेज मस्ट हैव नॉट सेलेक्टेड दोज स्टूडेंट्स प्रॉपरली। यार 250-300 बच्चे वो भी आप प्लेस नहीं कर पा रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो फिर आप यार ना। एक इतने प्रोमिनेंट जगह पर आप बैठे हो विथ सच ए ब्रांड नेम, सी द वैल्यू ऑफ द ब्रांड एंड स्टिल यू आर नॉट एबल टू प्लेस हियर। इट इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट, इट इज द प्रॉब्लम ऑफ द कॉलेज। कॉलेज मस्ट नॉट हैव टेकन द स्टूडेंट्स प्रॉपरली इन देयर सिलेक्शन, ये पहला। और दूसरा, द काइंड ऑफ एजुकेशन दैट वी आर इम्पार्टिंग इनटू द MBA कोर्स प्रोग्राम इज नॉट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द मार्केट। मार्केट में अब बहुत सारी नई चीजें हो गई है, उस तरह के लोग, उस तरह के पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स की कमी कॉलेजेस में होगी, एंड दैट कुड बी द रीजन। यदि आपका माल चोखा है तो बिकेगा, यदि आप अल्फांसो मैंगो हो तो भाई साहब 1500 रुपए किलो में बिकोगे, और यदि तोता परी हो तो 40 रुपए किलो में ही बिकोगे, सीधी सी बात है ये। तो आप में क्वालिटी होना चाहिए तभी कुछ होगा। ऐसा नहीं है कि MBA का ट्रेंड जा रहा है, प्लीज डू नॉट थिंक दैट द ट्रेंड ऑफ MBA इज गोइंग, बिकॉज सो मेनी पीपल मे बी थिंकिंग दैट द ट्रेंड ऑफ MBA इज गोइंग, या MBA ट्रेंड में कोई चेंजेस आने वाला है, या जॉब मार्केट इज कोलैप्सिंग इन MBA। इट इज नॉट एट ऑल द इश्यू। अरे यार आप MBA वाले बच्चों को नहीं लोगे तो किसको लोगे, किससे काम करवाओगे? सो MBA मार्केट इज नॉट गोइंग, MBA मार्केट तो रहेगा, बट द पॉइंट इज यू हैव टू बी गुड। यार आप अपने कट ऑफ में देख लो ना यार। अभी रिसेंटली IP मैट का एंट्रेंस एग्जाम हुआ, कट ऑफ देख के मैं दंग रह गया यार। वर्बल एबिलिटी में मतलब 100 के ऊपर जा रहा है, और गणित में आपके 20 नंबर नहीं है कट ऑफ यार, 12 नंबर 8 नंबर पे आपका कट ऑफ हो रहा है। व्हाट इज दिस हैपनिंग यार? नहीं लो ना ऐसे बच्चों को, कॉलेज को मना कर देना चाहिए कि हम ऐसे बच्चों को नहीं लेंगे जिनका कट ऑफ मैथ्स में इतना नहीं होगा। Why do we decide the cutoff of the paper based on the students who are applying, based on the scores of the students? Why I don't make the cutoff based on what I need? If I do not have a student who could run fast, who could do fast, who can make things fast, then what is the sense? Because at the end of the day मुझे उस लड़के को मार्केट में देना पड़ेगा, सौंपना पड़ेगा। If there is no seller, then what will happen? So boss, there is a big need for the students to work hard and make themselves prepared to such an extent that the placement is not going to be an issue. So if the placement is not happening, there are two reasons what I feel. First is the students are not well. Second, the college has not selected the right candidate for that particular place. That is the reason. And there are n number of reasons for that. कोई transparency नहीं है selection process में. Statistical terms में ऐसे terms and conditions लिख देते हैं which is very difficult for a person and a student to understand. नॉर्मल मेरिट का कोई मतलब ही नहीं रहेगा यार। आप अपने बलबूते पे अपने हिसाब से सिलेक्ट करते हो यार, तो कैसे होगा यार बताओ? होंगे ऐसे 20-25% हर साल ऐसे अंदर जा रहे बच्चे जिनकी जरूरत नहीं है, who do not deserve। ऐसे बच्चे घुस रहे कॉलेज के अंदर, तो क्या होगा? यही होगा। दिस इज द फाइनल consequences for the admission of such people who do not deserve। तो कम से कम ऐसे लोगों को लो जो फाकी डिजर्व करते हैं, ठीक है ना। 3 लाख बच्चे जब पेपर लिखते हैं तो आप IIM को मिला करके भी कैलकुलेट करोगे तो मुझे नहीं लगता 8-10 हज़ार बच्चे आपको ऐसे नहीं मिलते होंगे जो वाकई बहुत अच्छा काम कर सकते, हु कुड लर्न फर्स्ट, हु कुड अंडरस्टैंड थिंग्स कैटेगोरिकली। तो जब आप ऐसे बच्चों को मिस करोगे तो फिर ऐसे ही होगा। अभी भी आप 10वीं 12वीं के परसेंटेज में दिए आप बैठे हो, बाय द एंड ऑफ दी ग्रेजुएशन आप सोचते हो कि 12वीं में अच्छा नहीं किया, 10वीं में अच्छा नहीं किया, उस कैटेगरी में आप पीछे कर देते हो। तो मुझे लगता है ये कोर चीज़ें हैं जिसपे कॉलेज को काम करना चाहिए, एंड बेस्ड ऑन दैट आई बिलीव दैट द प्लेसमेंट कुड बी मेड बेटर। So this was all that I could see on this. So students who are right now preparing for any management entrance examinations, please do not get disheartened while looking at this particular information or news which was recently come up through India Today magazine। आप इसमें बॉदर नहीं करो यार, अपने पे काम करो। मैं सही बता रहा हूँ, अपने पे काम करो, आपका काम बेहतरीन हो जाएगा। 5000 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट में आप सॉल्व करो, 5000 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट। यदि आप क्वांटिटेटिव एबिलिटी कर रहे हो 5000 क्वेश्चंस, वर्बल एबिलिटी 5000 क्वेश्चंस, DILR 5000 क्वेश्चंस। फिर देखो यार कौन सा एंट्रेंस एग्जाम आपका नहीं निकलता है। यू विल सी एवरी क्वेश्चन इन द पेपर,
you must have done it somewhere or the any other place, and then you will see start happening things in your favor. तो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड है. मतलब 12 नंबर का कट ऑफ देखकर क्वांटिटेटिव एबिलिटी में इन द आईपी में बुरा लगने लगता है यार कि यार पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई ये सब्जेक्ट है यार, सब छोड़ के वर्बली पढ़ाओ फिर सब, क्योंकि वो तो 125 पे चला जाएगा कट ऑफ फिर आने वाले टाइम पर. बताइए ना, देयर इज ए मिसमैच यार. कॉलेज को इस पर ध्यान देना चाहिए. अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे यार क्वांटिटेटिव एबिलिटी बड़ा रोल प्ले करता है इन डिसीजन मेकिंग, इन अंडरस्टैंडिंग दी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ए सिचुएशन. बहुत सारी चीज़ें काम करता है, और उस सिचुएशन को डिसाइड करने के लिए हमें वैसे ही बच्चे चाहिए जो कि इस तरीके के काम कर सकते हैं. तो थोड़ा सा मिसमैच को कम करना चाहिए, आई बिलीव, एंड बेस्ड ऑन दैट आई थिंक दिस कुड बी डन, राइट. So this was all that we have today to say. Please don't get disheartened. Get into your studies. Give full involvement. Start working on it. Try to analyze your strength. जहाँ पर आपको लगता है कि मेरी स्ट्रेंथ नहीं है, उसको बनाओ स्ट्रेंथ को यार. इतना सारा टाइम पड़ा हुआ है कैट के एंट्रेंस एग्जाम में, 8-10 सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए ना. आईपी मैट में भी मतलब 8-10 सवाल पर सेक्शन करने में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए. इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड, मतलब डोंट गो टू राइट द एग्जाम जस्ट ऑन फेथ कि यार हो जाएगा चलो यार, या चलो मेरे पास डाइवर्सिटी है, आई एम ए गर्ल चाइल्ड, मुझे इसका बेनिफिट मिल जाएगा. ये सब हटा के वर्क ऑन द क्वालिटी, वर्क ऑन द प्रोग्रेस, and see what you can score. Based on that, if you are going to a college, I don't believe that you have a problem. अब उन 52 बच्चों के बारे में सोचो यार जो प्लेस नहीं हुए, 20-22 लाख 25 लाख तो लगा चुके होंगे. नाउ दे डोंट हैव प्लेसमेंट. कई लोगों ने तो लोन लेकर पढ़ाई की होगी, नाउ दे हैव ए प्रॉब्लम. ठीक है ना. तो अभी क्या होगा, आप विक्टिमाइज हो जाओगे. कॉलेज अपने प्लेसमेंट को छुपाने के लिए क्या करेगा, कई टैक्टिक्स करेगा. बोलेगा चलो ठीक है आपको अगले प्लेसमेंट में नेक्स्ट ईयर बिठा देंगे, अपना नाम प्लेसमेंट से वापस ले लो. यू do not want to sit for the placement, take your name. If you will take your name, next year we will give you a chance to sit for the placement. ऐसे बहुत सारे हथकंडे कॉलेज अपनाएगा, so that the college could say to the world that see we have given the 100% placement to the students. तो अब आप विक्टिमाइज हो जाओगे. ठीक है. तो यदि आप गलत तरीके से कहीं जगह पर गए हो तो आपका शोषण तो होगा ही होगा, उसमें कोई नहीं रोक सकता है. और यदि उसमें बचना है तो देयर इज ओनली वन वे, प्रिपेयर हार्ड, go to the college on merit. That is the only way and that is the only solution to this. Thank you so much. May God bless you. Bye bye. Have a great day.